আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ মামু, কি অবস্থা? ভালো আছো নি? আচ্ছা ইয়াদ, আবুধাবি কাজ একটা আসছিল, 80 টাকা করে বেতন দিবে ডেলি নাইট ক্লাবে। এখন যাইবে নি এটার মধ্যে? জানা আছে আমারে, এখন জানাইও। আবার 2 দিন অপেক্ষা করাইয়া জানাইও না। হ্যাঁ বাকি না, ওই লোকে কালকে পরশু দিন আইব বুঝলি। পরশু দিন আজমানে আইব, আইলে কথা হইব নি। এইটুকু কইছে। তো তুমি অন্যদিকে যে তারা যার লোক কথা কইছে, তুমি এদিকেও চাও না? ট্রাই করতে থাও, বইয়া থেকে কোনো চাই আবার। আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ ভাই না, ওই কথা কইছিলাম নি মামা, ওই এই লোকের নাম্বার দিয়েছি, তোমার নাম্বার দিয়ে দিছি। তুমি এই লোকের লোক কথা কও, কেমন? ভালো থেকে বাকিনে এই ছবিটার মধ্যে ক্লিক করে এটার একটা নিচে একটা অ্যাড্রেস আছে, এটার মধ্যে তোমার সিভিটা অ্যাপ্লাই করে দেওয়া হচ্ছে, কোনো কাজ হয়নি। अलैक्म कादर भाई, क्या हाल है? ठीक है कादर भाई, देखो मैं आपको पहले बोल दिया ऑलरेडी, 2-3 बार बोला। वो दुबई में वीज़ा लगा दिया ना, वो लेबर वीज़ा, वो बांग्लादेश का आदमी का, वो उसका वो सैलरी का मुश्किल है अभी। अभी तो 1 साल का ऊपर हो गया और सैलरी का वो नहीं डालेगा तो अभी कंपनी को मुश्किल आते हैं। वो आदमी दुबई से फ़ोन करके बहुत गिर कर रहा है। आपको ऑलरेडी कितना बार मैं बोल दिया। अभी तो उसको 500 दिएगा तो वो 2 साल का सैलरी का क्लियर करना चाहिए। अभी तो 1 साल का ऑलरेडी हो गया, तो वो 500 दिरहम थोड़ा जल्दी अरेंज करके दे दो। कितने बार मैं बोला आपको, ये नहीं दिएगा तो सैलरी क्लियर नहीं है तो कंपनी को भी मुश्किल आएगा, वो आदमी को भी मुश्किल आएगा, फाइन भी आएगा बाद में। इसका बारे में कोई प्रॉब्लम आएगा, फाइन आएगा तो हम तो मसूल नहीं है, ठीक है। और वीसा कैंसिल करने के टाइम और रिन्यू करने के टाइम और इसका फ़ाइन भी आएगा। कितना है वो पूरा लाजिम, बहुत पैसा आएगा। इसका पहले जल्दी 500 दे रहा हूँ, अभी तो 2-3 दिन में अंदर जल्दी अरेंज करके 500 दे रहा हूँ, अरेंज करके दे दो, नहीं तो मुश्किल है। वो आदमी बहुत फ़ोन कर रहे हैं दुबई से। अलैक्म कादर भाई, क्या हाल है? वो पैसा का क्या हो गया WPS का कादर भाई? वो आदमी तो हमको मुश्किल करता है, आपको हम कितने बार बोला। आज आप पैसा दिएगा ना? আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ মামু, কি অবস্থা? ভালো আছো নি? এ তো আমার বেশি বিরক্ত করতেছে, একবার আইয়া দেয়া করে কথা কয়, আবার মেসেজ দেয়, এই অবস্থা। আমি কি স্যালারি ট্যালারি পাইছো না? এই সেলসের জন্য লোক দরকার, সেলম্যানের লেগে, বুঝছো নি? তো এই নাম্বারে আছে, মেসেজ করে সিভি ফাড়াইতে নিচে আছে, সিভি ফাড়াও। আর কাজ করছি বুঝিনি, 10 দিনের মতো কাজ করছি, তাও এত স্যালারি ভাই। লাস্ট স্যালারি দিতেছে যে 1900 টাকা, ঠিক আছে? এগুলো লোকের দরকার আছে জরুরি, 28 তারিখের আগে আগে। তুমি আজকে একটু ইয়া করো, এই নাম্বারগুলো ভালো করে, তুমি না বুঝলেও কেউ দিয়ে বুঝা কীভাবে এটা ইমেল করবা করো, ঠিক আছে? যে এর মধ্যে আমার ওই যে লাস্টে কলম দিয়ে একটা টিক চিহ্ন দেওয়া আছে, আমার মনে হয় যদি নর্মাল কাজটা তো ঢুকো, পরবর্তীতে চিন্তা করতে পারবা, ঠিক আছে? একবার উপরে যে নাম্বারটা, এটা হলো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, বুঝছো নি? এই নাম্বারটা তো হোয়াটসঅ্যাপে ইয়াটা পাঠাও, সিভি পাঠাও। স্টোর কিপারের জন্য যেটা, এটা 2022 যেটা, এটা স্যালারি ট্রাই করে। এটা হলো সুপার মার্কেটের চাকরি ভালো আছে, দেওয়া ট্রাই করে। এটা কি এর ছবি ফাটাইছো না? এটা দেড়া দুবার, বুঝছো নি? যাও এটার মধ্যে সিভি পাঠাও, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এটা। মানে না, এই 13 নাম্বার এটা পাঠাচ্ছি যে, এটার মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপে তোমার পাসপোর্ট কপি, আইডি কপি, এগুলো পাঠাও। হ্যাঁ, পাসপোর্ট কপি, আইডি কপি, এটা টাইপিস্টে এখনকার লিখে দিব। এটা কি ধরনের ছবি, এটা তো আমি বুঝলাম না, আমার বাপের কুত্তো তো দেখছি না এরকম ছবি। আচ্ছা ঠিক আছে মামা, দেখতেছি এটা। এই টাইপিস্টলারে এই কাগজটি ছবি আমার কাছে পাঠাও তো, এখনকার জলদি পাঠাও। বাকিনা কিতা ফাটাইছো এটা? করতে চাও তুমি, চাও পারো নি? তোমার আইডি দেখাইলে আইডির মধ্যে তোমার কোম্পানির নাম লেখা আছে, ওই কোম্পানির নাম দিয়ে একটা সিল বানাও, বানায় সেরে একটা ফেসাই ফুসে ইংলিশে একটা সিগনেচার করো, বুঝছো নি? বুঝছো নি? বুঝছো নি? কইরা এটা কারেক্ট করে দাও, বাস শেষ। এতটুকু লেখাপড়া জানো, এত টেনশন নাও করতে পারি না, কথা বুঝো না? হাতের অঙ্কা বাবারে বহুত রকম বুঝাইছি, হাতের টিয়া ক্লিয়ার করে দিতে হবে, এরপর এতে দিব, নাহলে দিত না, সিধা কথা। তুই আমি অঙ্কা যেটা বার করছি, এটা টাইপিস্টলা যে এই দোকানের একদম প্রথম ক্যাশের মধ্যে যেটা বইয়ে হাতের দিয়ে বানাইছি, হাতে কাকা দেবে, সমস্যা নাই। সিলটা শুধু আমি ওই সিস্টেমে সংগ্রহ করে আমি সিলটা মারলে তো এনে ক্যামেরা আছে, দোকানে দেখা যাবে। তো অন্য ওখান থেকে আমি একটা সিল বানাইয়া, ওই যে আইডির মধ্যে যে নামটা, এই নামটা দিয়া একটা সিল। আচ্ছা ঠিক আছে। দোকান আছে, মামা দোকানে বই রয়েছে, বলে রাফিলেও কইছে আইবা দেখো। আচ্ছা মামার দোকানের লোকেশনটা দিন। হ্যাঁ মামা, আলহামদুলিল্লাহ আমরা তো। আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ ভাই না, আছি, ভালো আছি। কি
কি অবস্থা তোমরা আসলে ভালো স্বাস্থ্য ভালো নেই তোমার কি খবর তোমার কেমন আছো ভালো আছো নি কি খবর স্বাস্থ্য ভালো নেই কি করো কি অবস্থা আসলে ভালো আছি মামা ভালো আছি দোকান আছি বেরিয়েছি না কই তুমি যে 4-5 দিন দেই না তোমারে রুম ভাড়া দিয়ে দিছলা নি জানো মামারে রুম ভাড়া দিয়ে দিছলা নি এলো যুক্তি করে রুম ভাড়া যদি না দিয়ে তাও যুক্তি করে বলো ভাই বাকি এক্সট্রা কদিনের কত আর এটা হিসাব করে দিয়ে দাও এক্সট্রা আচ্ছা যেটাই করো করিয়া রুম ভাড়া দিয়ে দাও না কা হ্যাঁ আমার লোকে বারবার কয় এটা খারাপ দেওয়া না না মামা আমি অনকে 25 তারিখ মানে এই মাসের 25 তারিখ রুম ছেড়ে দিবা এডি এডি ফাইনালি কথা কও এই মাসের 25 তারিখ রুম ছাড়বা না আগামী মাসের 25 তারিখ রুম ছাড়বা এরা কোনো কথা পরবর্তীতে যেন আমার লোক কোনো কথা না হয় এভাবে ক্লিয়ার করো কথা কিদারে বাগিনা আজ কি সব অপরাধ না সব কথা কিতা যা এই টাইমে না এই টাইমে কোরআন শিব পড়তেছে কি না দিনভর রুমে তা রুম দিনে কিতা করে এই দিয়েছি সামনে ডরিস আইসো কটার সময় আইসি মামা আইতে আচ্ছা ঠিক আছে ভালো থেকো আসসালামু আলাইকুম ও কি অবস্থা ভালো আছো নি কই আছো জানো সে কই আছো জানো আসসালামু আলাইকুম ইয়া সকালবেলা কটার সময় জায়গা সকালে কটার সময় বাড়ি যায় জানো সে আসসালামু আলাইকুম ভাগনা ডিউটি থেকে আইয়া আমার দোকান আছি ঠিক আছে একটু দেয়া করে তো তুমি আরো আধা ঘন্টা পরে 1 ঘন্টা পরে আইলেও সমস্যা নেই কটার দিকে আইবে আপনি এখন ফিরে শুনি না কিতা না না অল্প একটু কাজ মানে দুইজনের কাজটা না করলে এটা হইতো না লেগে শুধু ওই বড় হ্যাঙ্গারটা আছে না এটা আমি প্লাস এই র্যান সাইনে রাখছি বাস এটা শুধু একটু খুললে নিচে নামানো একটুটুকু যদি সম্ভব হয় তাহলে আইও আমি দোকান আছি আর যদি বলে না মামা সকালে তাহলে সকালে হইলেও সমস্যা নেই আমরা জানো দোকানের সামনে আছি আমি দোকানের সামনে ওকে মামা থ্যাংক ইউ মামা আসসালামু আলাইকুম ভাই না ওই বাড়ি গেছো তুমি জানো সে বাড়ি ভাগনা কই আছো জানো কই আছো জানো জলদি আসসালামু আলাইকুম ভাগনা ওই আমার ইমেল নাম্বারে কিছু পাঠাছে লিখে দিবে ইমেলে পাঠাও লাগবে না ওইটা জিমেল আইডি ওটা চাইছে যে ইমেল চাইছে এই জন্য সমস্যা হয়েছে আসসালামু আলাইকুম ভাগনা কেমন আছো কি খবর তোমার স্বাস্থ্য ভালো নেই কি অবস্থা কি করতেছো কও ভাগনা তোমার কাছে তো লোকেশন আছে আল্লাহ দিবা স্যার কালকে ইয়ার জোফরের পরে বা মাগরিবের আগে কইরা আইলে সারবো মিলাদ পড়াইব কি তুমি আইও হ্যাঁ হ্যাঁ ভাগিনা কই আছো আইও না তোমার না লোকেশন দিছিলাম আইয়া ঘুরান দিয়ে যাও আজকে মিলাদ পড়াইবার মাগরিবের নামাজ পড়ে সেটা মিলাদ পড়াবো আর কি আইও আচ্ছা সমস্যা নেই পরে ওর সময় আইও আর কি ওকে কই আছো ভাগিনা আজ ডিউটি শেষ হলে দেখা করে যাবা আর ডিউটি ফাঁকে দিয়ে আইতে পারলেও ভালো হইব আমি একজনের নাম্বার দিব ইনে প্রসেসিং দিয়ে দিব মামা ইনে দাম দেবো একটা তোমার ये प्राइस नहीं है, प्राइस कितना मैं आपको बोलेगा, ये दुबई से है ना भाई, ये কাছে आपकी आजमन का है ना, वो तो कितना आएगा मैं तो बोलेगा 800 का ऊपर आएगा, 800 समथिंग आएगा, मैं आपको बोलेगा कितना आएगा। ভাগিনা ইয়ার থেকে দুবার ভিসা ক্যান্সেল করতে লেবার ইমিগ্রেশন ঠিক আছে দুটোটা ক্যান্সেল করতে দুবার ভিসা কত টাকা লাগে দুবাই তো তোমার লোক আছে কেউর মাধ্যমে এটা যাচাই করো থাকদা ঠিক আছে যাচাই করে আমার জানো এই কুড়িটা কইতে কইও কেউ মুখস্থ না কয় ঠিক আছে টাইফিস্টের থেকে যে টাইফিস্টের থেকে জিগাইব এই টাইফিস্টের জন্য নাম্বার লয় তাহলে ওই লোকের দিয়ে করাইতো কমু ঠিক আছে वालेकुम कादर भाई, आप तो कुछ है तो मैसेज करके डाल दो, मैं तो फ्री होने का टाइम आपको रिप्लाई करेगा, ऐसा ऐसा कंटिन्यू व्हाट्सएप को नहीं करो, फ्री होने का टाइम आपको रिप्लाई करेगा, ठीक है। अच्छा अभी वो आदमी को कैंसिल करना है क्या ना, अभी कैंसिल करने के लिए वो फिक्स वो डिसाइड करेगा, तो वो क्यों पहले तो नहीं बोला, वो आदमी लाजिम बोलना चाहिए ना भाई हमको वीज़ा कंटिन्यू नहीं करने का, आपको अभी मेरे को कैंसिल करना चाहिए, ये अभी वो बोलता है, अभी आपको भी अभी बोल दिया, मेरे को भी पहले बोल नहीं गया, वो बोलता मेरे पूछा कंटिन्यू रिलेशन रिन्यूअल नहीं है, वीज़ा रिन्यू कर सकता है, ऐसा ऐसा बोलता है। मैं आपको क्या बोला ना फ़ोन करने के, फ़ोन किया आपको क्या बोला, अभी वो वीज़ा कैंसिलेशन चाहिए तो वो पहले बोलना चाहिए ना, अभी उधर लेबर में जाके कंप्लेन करने का पहले वो हमको बोलना चाहिए ना ये वीज़ा कैंसिलेशन चाहिए, हम कैंसिल नहीं करेगा तो है ना उसको बाद में है ना ऐसा काम करने का, अभी वो उसको बोल दिया ना ऑलरेडी, आपको भी बोल दिया, वो पहले जाके लेबर में कंप्लेन किया ना, केस वापस करने का, केस किया वो कैंसिल करके बोले बाद में वो उसका वीज़ा कैंसिल करेगा ना, क्या मुश्किल है कैंसिल करने का, हमको क्यों उसको पकड़ के रखेगा, कैंसिल करने की क्या मुश्किल है, पहले केस वापस करने के लिए बोला।
अच्छा आशिक भाई, 2 मिनट मेरे को टाइम दीजिए ना। इसका वीसा कैंसिल करने के लिए आपको अभी कितना पैसा देगा तो खत्म है वो बता दीजिए, बस सीधा सीधा। इतना बात करने का फायदा नहीं है। जो आदमी कंप्लेन कर सकते हैं, इसका कैंसिल नहीं करना पड़ेगा, इसको रख के आपको कोई फायदा नहीं है। आप वीसा लगाएगा तो मैं ये भी बात करेगा, ठीक है? आप बोलेगा तो इसका वीसा लगा देगा तो वो भी बात करेगा मैं। इसका इसका मामू का घर मेरा घर साथ में, तो ये भी मेरा अपना मामू का क्या लगता है, नाती लगता है, ऐसा रिश्तेदारी है। ठीक है, जो अ, इधर भी नहीं बोल सकता उधर भी नहीं बोल सकता, ऐसा फंस गया मैंने। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दो वो आसान है। अब नहीं, इसको वीसा लगाएगा वो भी अलग बात है। अब बताइए क्या करने का। और कैंसिल करेगा तो कितना पैसा देने का, वो एक एक ही बात बताइए, मैं इसको बोल दे देगा तो खलास हो जाएगा। भाई ये ना मैं आपको बोल दिया, मैं उसको वीसा इधर के क्या फ़ायदा है मेरे को उसका वीसा नहीं चाहिए ना। मैं आप तो पैसा दिया उसको वीसा लगाया, 2 साल का वीसा है, इसका पहले कैंसिल करना, वीसा भी खत्म नहीं है और भी महीने बाकी है। अभी उसको वीसा नहीं चाहिए तो भाई हमको वीसा नहीं चाहिए, हमको कैंसिलेशन चाहिए, वीसा कैंसिल करो, ऐसा पहले बोलना चाहिए ना भाई। वो तो कैंसिल करने का आप भी नहीं, मेरे को नहीं बोला, वो आदमी भी कैंसिल करने के लिए नहीं बोला। फिर तो इसका पहले हमको कोई इन्फॉर्म नहीं किया, वीसा नहीं चाहिए, वीसा कैंसिलेशन चाहिए, तो अब मेरे को बोला कैंसिल करने का, नहीं बोला। वो आदमी भी मेरे को नहीं बोला कैंसिल करने का। इसका पहले वो सीधा उधर जाके लेबर में कंप्लेन करने का, क्यों ऐसा किया, क्या फ़ायदा है उसको? वीसा कैंसिल करने के पहले लाजमी उसका केस वापस करना चाहिए ना भाई। इसलिए मैं वो लेबर में जाएगा, उधर बोलो मेरे को कंप्लेन नहीं है, मैं केस वापस करेगा, केस कैंसिल करेगा, उसको उसको बोले केस वापस करो, कैंसिल करो, बाद में कैंसिल करेगा। कैंसिल करने के लाजिम वो लेबर में कंप्लेन है ना उसके बारे में, वो केस वापस करने के लिए बोलो, कैंसिल करो, बाद में उसको जल्दी वो कैंसिलेशन मिलेगा ना। क्या मुश्किल है कैंसिल करने के लिए? कोई मुश्किल नहीं है ना। वो और फाइन में नहीं है, ओवर से नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको वीसा भी और बाकी है। इसका पहले कैंसिल करना चाहिए तो मुश्किल नहीं, कैंसिल करके देगा हमको, क्यों उसका वीसा रखने का क्या फायदा है? कि नहीं, वो कैंसिल करने का कोई मुश्किल नहीं है, कैंसिल करेगा, लेकिन अभी वो ऑलरेडी केस किया लेबर में, वो केस वापस करने के लिए, कैंसिल करने के लिए बोलो, बाद में कैंसिलेशन करेगा उसका वीसा। हमको क्या मुश्किल है कैंसिल करने का, लेकिन मेरे को हमको इन्फॉर्म करना चाहिए। अभी मेरे को कुछ भी नहीं बोला, वो भी नहीं बोला, सीधा जाके उधर कंप्लेन करके क्या अभी क्या हो गया, क्या फायदा है? वो लेबर में केस किया, वो कैंसिल करना, केस वापस करने के लिए बोलो, बाद में उसको वीसा कैंसिल करेगा, कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपके साथ डीलिंग है, वो आदमी के साथ मैं कुछ डीलिंग नहीं है, वो आदमी का मेरे को भी मालूम नहीं है। अब तो अच्छा आदमी आप मेरे को सीधा सीधा बात कर रहे हैं, मैं आपको भी सीधा बात कर रहे हैं, ठीक है? उसको मेरे को मैसेज करने का, फ़ोन करने के लिए नहीं बोलो प्लीज़। क्यों दिया? आप कौन दिया? आप क्यों दिया उसको मेरा नंबर उसको? तो मैं आपके साथ है ना डीलिंग, उसके साथ कोई डीलिंग नहीं है ना पहले, ठीक है? उसको केस वापस करने के लिए, कैंसिल करने के लिए बोलो, बाद में उसका वीसा कैंसिल करने के मैं आदमी को बोलेगा, मुश्किल नहीं। और केस है, वो केस किया, फिर कैसे कैंसिल करेगा? आशिक भाई, यकीन करिए, माँ कसम बोल रहा था मैंने। ये मेरे को मालूम भी नहीं है ऐसा काम कर सकते हैं। इतना सीधा आदमी कैसे कंप्लेन कर देगा वो तो मालूम नहीं मेरे को। ठीक है, वो मेरे को बोला था कुछ दिन पहला भी आया था मेरा दुकान में, आकर बोल रहा था मामा मैं इसका या वीसा का तरतीब करना पड़ेगा। तो आपका साथ मेरा वीसा का तरतीब करने के लिए बातचीत चल रही है, ठीक है ना? वो कैंसिल का बात तो नहीं हुआ, उसका साथ भी नहीं हुआ। वो किसका बात सुनकर मेरे को उसका कैंसिल या कंप्लेन कर दिया मालूम नहीं ना मेरे को। वो बोल रहा था जितना कैंसिल करने के लिए जितना पैसा जाएगा वो पैसा वो दे देगा। ठीक है, तो मैं बोला 380 ऐसा तक जाएगा तुम्हारा या कैंसिल करने के लिए, तो इतना बोला मैंने। तो आप क्लियर करिए ना मेरे को कितना इसको बोलने का। तो वो पैसा आपका टाइपिस्ट में जाकर दे के आएगा, फिर बाद बाद में खुद वो उधर से जो ये है कंप्लेन किया वो भी उठा लेगा। आपका पास पहला कैंसिल का पैसा दे के आएगा, फिर आप कैंसिल करिए। तो मेरे को बता दीजिए आप। आपका साथ दोस्ती मेरे को भी खत्म नहीं हो जाएगा, अल्लाह ना करे। ठीक है, जैसे है ऐसे रहेगा भाई। वही है ना भाई, मैं बोला कि वो कैंसिल करने का कोई बात मेरे को भी नहीं बोला, आपको भी नहीं बोलते बोलते, आप भी मेरे को भी नहीं बोला। फिर सीधा जाके उधर कंप्लेन करके कोई फायदा, क्यों क्यों ऐसा किया, कौन है उसको ऐसा आइडिया बोल दिया, मालूम नहीं, क्यों ऐसा किया भी मेरे को मालूम नहीं। उसको वीसा नहीं चाहिए तो वो पैसा खर्चा किया, उसको अभी वो भी बोलता है वीसा और बाकी अभी उसको कैंसिल चाहिए, तो लाजिम बोलना चाहिए। इसका पहले उधर जाके कंप्लेन करके क्या फायदा है? अभी वो केस वापस करेगा, बाद में वो कैंसिल जल्दी कैंसिल करेगा ना। वो कितना खर्चा आएगा मैं तो चेक करके बताएगा। अभी कोई है तो अब उधर ऑफिस में जाके कोई फायदा नहीं है, उधर तो दूसरा आदमी लोग है, उधर उधर जाके बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो पुराना ऑफिस में, ठीक है? वो ये तो अब मेरे को कॉल करेगा, मैसेज करेगा, मुश्किल नहीं, फिर आने के टाइम आपको रिप्लाई करेगा। वो कैंसिलेशन खर्चा कितना, 300 समथिंग नहीं है, कैसे 300 समथिंग आएगा? वो तो कितना आएगा मैं आपको बोलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, वो तो कितना आएगा मैं आपको चेक करके बताएगा। लेकिन ये केस किया ऑलरेडी, वो लेबर में उसका केस है, उसका लेबर पहले लेबर कैंसिलेशन चाहिए, बाद में इमिग्रेशन कैंसिलेशन चाहिए। दोनों कैंसिल करना है तो वीसा कैंसिल हो जाएगा ना। लेबर कैंसिल करेगा, इमिग्रेशन कैंसिल करेगा। लेबर कैंसिल करने का ऑलरेडी वो केस किया लेबर में, तो कैसे उसको उधर जाके केस कैंसिल वापस करने के लिए बोलो। उधर जाके जल्दी, अभी तक केस वापस नहीं किया, मालूम नहीं है, उधर जाके केस वापस करने के लिए बोलो, बाद में और जल्दी कैंसिलेशन करेगा। उसका वीसा हमको इधर रख के हमको क्या फायदा है भाई, क्यों चाहिए उसका वीसा? आशिक भाई, आपका पुराना ऑफिस से मैंने एक आदमी का कैंसिल किया था। ठीक है, टोटल मेरे से लिया था 350 दरम लिया था। तो दूसरा एक आदमी से पहला कैंसिल किया था, वो भी मेरा ये लाइसेंस का था। वो मेरा लाइसेंस रेन्यू नहीं था ना, तो इसका वजह से मैंने 2 आदमी को कैंसिल कर दिया, क्यों वीसा का टाइम जा रहा है इसका वजह से। तो वो आदमी को भी 380 दरम किया। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा था आपको इतना पैसा में खलास है। तो मैं आपका ये पैसा आपका पास इसको बोलते हैं पहला उधर पैसा डाल के आओ।
तो जाकर इसको बोलेगा कंप्लेन उठाओ, तो ये सिस्टम में काम करेगा। अभी नहीं फंसेगा, मैं भी नहीं फंसेगा, ठीक है ना। ये प्राइस नहीं है, प्राइस कितना मैं आपको बोलेगा, ये दुबई से है ना भाई, ये आपकी आजमन का है ना, वो तो कितना आएगा, मैं तो बोलेगा 800 का ऊपर आएगा, 800 समथिंग आएगा, मैं आपको बोलेगा कितना आएगा। सलाम अलैकुम भाई, ये तो इतना आएगा कैंसिल करने का। अब तो पैसा डायरेक्ट देगा तो दे दो, नहीं है तो अकाउंट नंबर चाहिए तो अकाउंट नंबर देगा, एनपीटी एडीसीबी मछली कौन सा बैंक चाहिए तो उसमें डाल दे, रसीद भेजो, ठीक है। वो उसको केस वापस करने के लिए बोल दिया ना, वो केस वापस किया और नहीं किया, वापस करेगा तो उसको एक मैसेज आएगा, वो भेजने के लिए बोलो। अभी ये इतना पैसा देगा तो वैसा खलास कैंसिल करके देगा, कैंसिलेशन। আসসালামু আলাইকুম ভাই, না ইয়া করে তো এতে কইতেছে তোমার এই এত টাকা দিতে হইব, এই যে লিখে পাঠাইছে, হ্যাঁ ক্যান্সেল করে দিব, ঠিক আছে। তো তুমি ইয়া করো, কি করবো কও। इतना ऐसा पैसा लाजम देना चाहिए, तो उसको देगा कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या क्या कुछ दूसरा कुछ करेगा हमको मालूम नहीं, आपका मर्जी, आप कुछ करो। হ্যালো আসসালামু আলাইকুম মামা। জিমেল এটা না, আপনি কি এটা খুলছিলেন? জিমেল আরেকটা খুলছিলেন তো, এটা এটা চালু করেন, এটা আগে। এটা কেমনে চালু করবো? এটা তো একটাই আইয়ে শো করে, তো একটাই আছে, এটা নিয়ে আছে। এর মধ্যে কোন চিহ্নটার মধ্যে চাপ দিতাম, এটা ঠিক চিহ্ন দিয়ে পাঠাও। জিমেল ঢুকে এটার মধ্যে ওই দোকানের একটা ইমেল আওয়ার কথা বুঝুনি, বিজলি কানেকশন ক্যান্সেল করছে যে, এটা নারায়ণগঞ্জেতে আইতেছে না। ডেইলি এতারা অফিসের ফোন দেয়, এতারা আমার এই অফিস থেকে ফোন দেয়, বহুত বিরক্ত করতেছে। ইমেলটা আইলে এরপর আমি এটা ক্লিয়ারেন্স একটা কপি আইবে ইমেলে, ওইটা পাঠাইতাম বলে কি। এখন কোন সময় আইবে? আর ডিউটি করার সময় শেষ হবে, নাহলে মামা আইনে আই, তোমরা এদিকে আই, ইয়ে তোমার রুমের এদিকে আই। এখন এটা বেশি দরকার আমার। তোমার ডিউটি করার সময় শেষ হবো, করার সময় রুমের দিকে থাকবা, জানা। কি অবস্থা তোমার? আসসালামু আলাইকুম ভাগনা, আমি লুলুর সামনে আছি, লুলুর সামনে আছি, তুমি আইও, লুলুর সামনে আইও, লুলুর সামনে আইও, আইও মিস কল মারো। আসসালামু আলাইকুম মাও, ওটা তো এর নাম্বার তো আছে, আমি অনেকক্ষণ এর নাম্বার পাই নাই, ঠিক আছে, পাইলে আমি তোমার পাঠাবো নি। আর শুক্রবার আইও, ওইদিকে মামা বিকালে থাকবো, শুক্রবার আইও, লুলুরের দিকে আইলে বইয়া কথা কইলাম, ঠিক আছে। এরপরে রোহিত মেরিনও গেলা। হ্যাঁ ভাগনা কই, মেসেজ দাও না, খবর নাই, কিতা করো তুমি? আমাদের ঈদের সময় হঠাৎ করে না আইলাম বাড়িতে, ওই শাকিলের তো স্বাস্থ্য ভালো না, ওকা আবার শুনতেছি তোমার স্বাস্থ্য ভালো না। ইটা কো এটি খেয়াল রাখো, ঠান্ডা ঠান্ডা যেন না ধরে, যেটুক পারো মালটা টালটা খাও, মালটা খাও, আল্লাহ মাফ করবো নি। সে কথা কয়েছে। আসসালামু আলাইকুম মামা, এই নাম্বারটা একটা মিনিট ফোন দিয়া বলে কয়েছে, বলে কাদের মামা কইছে আপনারা কল দিতেন আপনার নাম্বারে, আপনার নাম্বারে ডাইরেক্ট কল দিতেন কইছে, কথা কয়েছে। এলো মেয়ের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার। হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম ভাইনা, কি অবস্থা, ভালো আছো নি? কি খবর টবর, কই আছো জানো? ওয়ালাইকুম আসসালাম মামা, কেমন আছেন? হ্যাঁ ভাগনা, মেসেজ দিছো কি? কিতে দি? আসসালামু আলাইকুম মামা, কই আছো জানো? আছো কই? বলতেছি তুমি কই আছো জানাও, আইবানি আমার দিকে, আইবানি জানো? ওই একটা লোকে তোমার রুমের লগে দিয়ে একজনের 200 টাকা দেওয়া লাগে, সাইমন ভাই আমার কাছে দিয়ে গেছিল, ঠিক এটা।